It's rightly said, the happiest days are the ones filled with laughter and little messy hands. क्योंकि यही वो लम्हे होते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं और याद भी दिला देते हैं गुजरा वक्त जो कभी दोबारा नहीं आता। आज का इवेंट सिर्फ पेंटिंग नहीं था बल्कि लम्हा था मेरे लिए बच्चों की मासूमियत के साथ बिताने का, जो मुझे मिला पेंट ऑन आइस इवेंट में जाने पर। यहाँ मुझे मिले बहुत सारे बच्चे जो वहाँ इकट्ठे हुए थे एक आइस हॉकी एरेना को अपनी क्रिएटिविटी से रंगों से भरने के लिए। तो चलिए आप भी मेरे साथ इन रंगों के माहौल में। तो ये इवेंट था कनाडा के एक शहर में जिसका उद्देश्य बदलते मौसम को वेलकम करना था, क्योंकि ये एक आइस स्केटिंग एरेना था, वेरी स्लिपरी। पर बेपरवाह ये बच्चे दौड़ भाग रहे थे और कुछ इतने एनग्रॉस्ड थे, जस्ट लाइक अ परफेक्ट आर्टिस्ट। Everything was perfectly organized by manager Eric with his team, जो कि खुद personally involved थे helping children, looking after छोटी से छोटी चीज को भी वो अपने ध्यान में रख रहे थे। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था एक आइस हॉकी एरेना पर। So I had opportunity to meet Eric, जिन्होंने बताया। Hello. Great meeting you. And so this event, it is under your supervision. It is under the supervision of the Recreation Office for the town of Altona, and I am the manager of the Recreation Services. Altona gets funding for this, and how often like these kind of programs are being organized? Sure. This is our second year that we've offered this event through the Recreation Department, and we were able to make this a free event because we got sponsorship from a local business. Okay. Who provided us with some funds so that we could purchase the paint and the paint brushes. And that business is D&W Productions. It's a local film and photographic company. And Tim Hortons provided free hot chocolate for the event as well. That's great. That's great. And it's really a great event for families with young children to come out and use their artistic talent yes. to paint on the ice and have fun with their family and friends. It's a different way of using an arena instead of just figure skating or hockey. This is kind of very different, right? And so it's fun at the end of the season to let everybody have the opportunity to come to the arena, come on the ice, and have some fun painting it and making it very colorful. So it's great of you like organizing such kind of events, and I've also like spent some time, and I guess like people are enjoying, especially the children and the parents. Like I think it's a great opportunity. Town of Altona and under like you people are looking after everything, and it's such a great thing. Yes. So thank you very much, thank you for Eric, coming. for inviting me to this event. Of course. Really, it's pleasure meeting you all and participating. Not participating exactly, but yes, it's fun being here. Yeah. So thank you so much. Yes, you're welcome. तो आपने देखा कि हमें एरिक ने बताया कि ये एक टोटली डोनेशन बेस्ड प्रोग्राम था, जिसका पूरा खर्चा जो था वो एक डोनेशन से निकाला गया था और जिसका उद्देश्य था बच्चों को एक मीडियम देना जहाँ पर वो अपनी क्रिएटिविटी को हम तक पहुँचा सकें और पेरेंट्स और बच्चों को एक साथ हम एक ही प्लेटफॉर्म पर ला सकें, चाहे कुछ समय के लिए ही, क्योंकि ये ज़िंदगी है भाग दौड़ की जिसमें बच्चे भी पेरेंट्स भी हम सब एक रैट रेस में भाग रहे हैं। तो अगर कुछ समय हमें इस तरीके से मिल जाता है जहां हम अपने बच्चों के साथ कुछ टाइम बिता सकते हैं एज अ पेरेंट, आई थिंक इट्स कमेंडेबल। यहाँ पर कुछ बच्चे आप देख सकते हैं सिंपल स्प्रिंकल से ही खुश थे, तो कुछ बेहतरीन रंगों को भरने में।
सबकी अपनी इमेजिनेशन थी, सबकी अपनी पसंद। और सबसे अच्छा स्वीट मोमेंट मेरे लिए तब था जब कुछ बच्चे कैमरा के पास आए with full of excitement to be captured. So it was truly heartwarming. इतने सारे बच्चों के बीच रहना, उनसे मिलना, उनसे बातचीत करना और उनकी एक्टिविटीज को एंजॉय करना, उनके माध्यम से बच्चों को सीखने को मिल रही थी एक अपॉर्चुनिटी टू शोकेस देयर क्रिएटिविटी, साथ ही डिसिप्लिन, togetherness, sharing in real sense. It was a moment of bringing together the community you live in. 2-3 साल के छोटे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे विद फुल ऑफ एक्साइटमेंट। हर ब्रश के स्ट्रोक में जैसे उनकी मासूमियत, उनकी हैप्पीनेस दिख रही थी। It's really amazing to see what began as an open canvas beautifully transformed into vibrant kaleidoscope of imagination, innocent dreams and endless creativity. अब एक सफेद आइस एरेना तब्दील हो चुका था रंग बिरंगी चादर में, एक खूबसूरत रंगों से भरी दुनिया जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं थी, कोई रूल्स नहीं थे, रेगुलेशंस नहीं थी, बस बच्चों की क्रिएटिविटी थी, उनकी इमेजिनेशन थी और उनकी नन्ही नन्ही खुशियाँ थी। मेरे लिए ये एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट था बीइंग अ टीचर। यहाँ पर टिम हॉर्टन्स की तरफ से हॉट चॉकलेट भी थी। ये सब मुझे पता चला था जब मेरी बातचीत हुई इस इवेंट के मैनेजर एरिक से। इवेंट के पूरा होते ही सब कुछ इतनी आसानी से रैप अप हो गया, तो हर मौजूद इंसान को पता था कि उसे क्या करना है, कब करना है। और सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग मोमेंट मेरे लिए तब था जब मैंने देखा कि पूरे एरेना को एक मशीन, जिसे आई थिंक इसे ज़ैम्बोनी कहते हैं, उसने सेकंड्स में पूरे आइस एरेना को एकदम चमचमा दिया, एकदम क्लीन कर दिया। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस था। और अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं, आई थिंक इट्स नॉट जस्ट ब्रिंगिंग चिल्ड्रन टू इवेंट्स, इट्स अबाउट बीइंग विद देम। उनके साथ रहना, उनके साथ चाहे एक लम्हा ही साथ। आई थिंक एज अ पेरेंट बीइंग प्रेजेंट मैटर्स मोर देन बीइंग परफेक्ट। चाहे एक लम्हा ही सही ज़रूरी है। लाइफ moves fast and childhood even faster, so sometimes it's good to be a child with your child. We remember moments. वो लम्हे सिर्फ लम्हे ही नहीं होते बल्कि एक प्यारी सी याद में तब्दील हो जाते हैं, जहाँ कभी हम अपने बच्चों के साथ बच्चा बन गए थे। तो मेरे लिए ये बहुत ही यादगार, एक बहुत ही प्यारी, एक बच्चों के साथ बिताई हुई शाम थी जो मुझे हमेशा याद रहेगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको मेरा ये बच्चों के साथ गुजारा हुआ लम्हा कैसा लगा,
और इसे देखकर आपको क्या क्या याद आया और क्या एज अ पेरेंट हमें कुछ सीखने को मिला कि हमें बच्चों के साथ कभी कभी बच्चा बन जाना चाहिए. Every moment stays, but some never really leaves. Do share in the comments your favorite part of the video. Thanks for watching.